Hello everyone, welcome to Target IES. I am Chandan Sharma and I have secured All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019. So let's start with the anti-friction bearing. In the last class we have compared the journal bearing and anti-friction bearing. दोनों में से कोई भी अच्छा कोई भी ख़राब नहीं है. It's depend upon the application where you want to use. Okay. So both are used quite a lot, but हम देखते हैं कि mainly जो small वर्क है यहाँ पर, जहाँ पर जो लोड है कम है, जहाँ पर वी कैन से द स्पेस इज कंस्ट्रेंट, देन वी यूज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग. एंड वेयर द लोड इज़ वेरी मच हाई, द इम्पैक्ट लोड इज़ देयर एंड सडन लोड कैन ऑकर, सो वहाँ पर हम जनरल बेयरिंग यूज़ करते हैं. ओके, सो हमने जनरल बेयरिंग देख लिया था एंड वी हैव ऑल्सो सीन द वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द जनरल बेयरिंग. In this lecture we are going to analyze the anti-friction bearing. This lecture can be long, so stay with us and let's start. So most of all you have heard the name of SKF bearing. So SKF is a company name. Okay, इसका full form जानने की ज़रूरत नहीं है, but still if you want to know, Svenska Kulger Fabriken. It's a Sweden name, so I might pronounce it in different way. So ये याद करने की ज़रूरत नहीं वैसे. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नंबर्स होते हैं. दीज आर इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड दीज आर यूज्ड टू डिफाइन द बेरिंग. सो व्हाट दीज नंबर्स आर, so let's first see one by one. The first number is type of bearing. So you need not have to remember all the types, just remember that 1 is for self aligning, 3 is for taper roller bearing, and 6 is for DGBB, that is double groove ball bearing. Okay, ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ये वाला पार्ट. जस्ट रिमेंबर दैट दिस पार्ट, टाइप ऑफ बेयरिंग. 6 इज फॉर टाइप ऑफ बेयरिंग, 3 इज टाइप ऑफ सीरीज. Okay, we will talk about the type of series after some time. And this 08 is tells you about the shaft diameter. Okay, shaft diameter. So here it is 8 into 5 is equals to 40 mm. So this is shaft diameter. Okay, so लेट्स फर्स्ट, ये तो टाइप ऑफ बेयरिंग हमने देख लिया. यहाँ पर वेरियस टाइप है, अगर आपको देखना भी है तो यू कैन जस्ट गूगल सर्च. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज सेकेंड टर्म 3 रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ बेयरिंग, टाइप ऑफ सीरीज. सो लेट्स सी व्हाट इज टाइप ऑफ सीरीज. सो हेयर आर सम नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5. इस टाइप से अप टू 5 हम देखते हैं. सो 1 को हम 100 सीरीज बोलते हैं, 100 सीरीज. 2 को 200 सीरीज, 3 को 300 सीरीज, 4 is 400 series, and 5 is 500 series. So just remember the name. Okay, now how we are going to differentiate 1 2 3 and 4. So 1 is for extra light series. This is extra light. Okay, this is light, means this is extra light for extra light load. Okay, this is medium, this is heavy, and this is extra heavy. So you see, as we move in this direction, as we move in this direction, so your load capacity increases, because initially 1 is for extra light load and 5 is for extra heavy, so load capacity is increasing. Dimension is also increasing. Okay, dimension of the bearing is increasing, and because of that cost is also increasing. Okay, क्योंकि एक्स्ट्रा हैवी लोड के लिए बेयरिंग को भी तो थोड़ा अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ेगा. सो अगर हम बोलें देयर इज 2 टाइप ऑफ बेयरिंग, SKF 6308 एंड 6408, बोथ आर ऑफ SKF ब्रांड. ओके, सो हाउ यू आर गोइंग टू सी, मीन्स अगर ऐसे दे दिया and you have to identify, these type of question can be asked in the interview, and there are 2 bearing. First one is like this. This is ball in the bearing. Okay, second one is something like this. Okay, so as I've already told you, as
the series number increases, dimension also increases. So we can see that the dimension of this bearing is high. So this is your 6408, this is 6308. Okay, अब यहाँ पर 08 है, 08 है means this is 40 mm. The diameter of the shaft is 40 mm. So how the shaft is going means like if there is 6300, 01, 02, 03, then 04, 05 onward. So यहाँ पर शाफ्ट डायमीटर कैसे होता है, सम टाइम आपको क्या होगा, क्वेश्चन में बेयरिंग का नंबर दे दिया जाएगा. ओके, एंड देन यू हैव टू ऑन बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो आपको डायमीटर तो चाहिए सॉल्व करने के लिए. सो अगर 00 है इसका मतलब 10 mm, 01 है 12, 2 है 15 एंड देन 17. आफ्टर दैट जो भी है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो. सो 20, 25. दीज आर स्टैंडर्ड बेयरिंग. बट ये स्टैंडर्ड बेयरिंग है जो मार्केट में अवेलेबल है. बट कभी कभी क्या होता है, इन इंडस्ट्रीज काफ़ी स्पेसिफिक मशीन्स यूज़ होती हैं. ओके, जो कि बाहर और कहीं यूज़ नहीं होती. सो उसके लिए काफ़ी स्पेसिफिक बेयरिंग डिज़ाइन की जाती है. सो इफ़ यू वांट टू से कि वहाँ पर एक शाफ्ट है जिसका 23 mm डायमीटर है, तो यस उसके लिए भी डिज़ाइन होगा. बट वो स्टैंडर्ड बेयरिंग नहीं रहेगा, उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होगी एंड दैट वो इज़ गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर ओनली फॉर दैट मशीन एंड और फॉर दैट कंपनी. सो हमें सिर्फ स्टैंडर्ड के ऊपर जाना है, बिकॉज द बाइक्स, द बेयरिंग आर यूज्ड इन द बाइक्स, मोटर व्हीकल्स, कार, इन सब चीज़ों में. ट्रेन पे नहीं जाएंगे बिकॉज ट्रेन इज़ अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ मशीन. सो जितनी भी आप चीज़ें दौड़ते हुए देखते हैं, नॉर्मल मशीन्स, मिक्सर्स, फैन वगैरह देखते हैं, सो इन सब में जो बेयरिंग यूज़ होगी वो काफ़ी स्टैंडर्ड यूज़ होगी, क्योंकि वो जनरली अवेलेबल करवानी है हमें मार्केट में, राइट. सो ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम हर एक इंसान के लिए अलग अलग बनाएं. ओके, नाउ ये तो हमने पढ़ा था SKF का, राइट. नाउ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर बेयरिंग, ये भी देख लेते हैं एक बार, बिकॉज इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये जनरली कहाँ पूछे जाएंगे आपसे, EAC में काफ़ी कम चांसेस है, बट हाँ SSC में पूछे जा सकते हैं. ओके, सो इट इज स्टार्ट विथ IS 40 BC03. ओके, सो IS इज फॉर इंडिया स्टैंडर्ड, 40 इज योर diameter, shaft dia, BC is for it is type of bearing. So वहाँ पर हम नंबर से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पर अल्फ़ा से अल्फ़ाबेट से कर रहे हैं. एंड दिस इज़ फॉर DGBB. ओके, एंड 03 इज टाइप ऑफ सीरीज. सो यू कैन सी यहाँ पर जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया है, राइट. सो कुछ चीज़ें हैं जो आगे पीछे जाएंगी, तो उससे डरना नहीं है हमें. ओके, नाउ टर्मिनोलॉजी, यहाँ से मेन पार्ट हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होता है. ओके, सो टर्मिनोलॉजी, सबसे फर्स्ट है इक्विवेलेंट लोड. इक्विवेलेंट लोड मीन्स इफ देयर इज अ शाफ्ट एंड देयर इज अ बेयरिंग. हम जब कहीं पर डिज़ाइन करते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये एक लोड लग रहा है बस भाई, और कोई लोड नहीं लग रहा. दिस इज रेडियल लोड एंड दिस इज एक्शियल लोड, राइट. दिस इज रेडियल, दिस इज एक्शियल, बट समटाइम दिस काइंड ऑफ लोड इज ऑल्सो एक्टिंग. ओके, पर हमने जब डिज़ाइन किया सो हमने एज्यूम कर लिया या तो रेडियल लोड है या तो एक्शियल लोड है. बट एक्चुअल कंडीशन में रेडियल भी लग रहा है और एक्चुअल भी लग रहा है. सो उसको हम इक्विवेलेंट लोड में चेंज करते हैं. इक्विवेलेंट लोड कितना है? ओके, लाइक रेडियल यहाँ पर 10 है और यहाँ पर एक्शियल 10 है. एक्चुअल कंडीशन में हमने जो डिज़ाइन किया था वो रेडियल 15 के लिए किया था, राइट. बट यहाँ पर तो 10 एंड 10 है, तो इसके कारण भी तो फेल हो सकता है. तो हम इन दोनों का इक्विवेलेंट लोड निकालेंगे. सो दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट, सो दैट द इफेक्ट विल रिमेन सेम. ओके, जो अलग अलग लोड लग रहा है रेडियल एंड एक्शियल, उसका जो इफेक्ट है और इक्विवेलेंट का इफेक्ट है वो सेम रहेगा. सो हाउ वी आर गोइंग टू इक्विवेलेंट लोड? इक्विवेलेंट लोड इज डिनोटेड बाय PE और PM. ओके, तो ये नोटेशन है बस. दिस इज S, दिस पार्ट इज S. ओके, S इंटू एक्स इंटू वी इंटू FR प्लस वाई इंटू FA. ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसका और कोई तरीका नहीं है. ओके, दिस फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर, इसका और कोई चारा नहीं है. सो वेयर S जो फर्स्ट वाला पार्ट है, S इज सर्विस फैक्टर और शॉक फैक्टर. सर्विस फैक्टर इज डिफरेंट. ओके, हम सर्विस कंडीशन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम सर्विस फैक्टर बोलते हैं. ओके, सर्विस फैक्टर. नाउ द सेकेंड पार्ट इज V. S हो गया. अब V इज रेस रोटेशन फैक्टर. इसके बारे में हम बात करेंगे, रेस रोटेशन फैक्टर क्या होता है. आपको पहले नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. X इज रेडियल लोड फैक्टर, जो रेडियल लोड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो X क्या है उसके लिए. Y इज एक्शियल लोड फैक्टर. FR इज रेडियल लोड एंड FA इज एक्शियल लोड जो लग रहा है. ओके, नाउ सर्विस लोड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज द कंडीशन इन विच
द सिस्टम इज वर्किंग. सो इफ द लोड इज स्टेडी, जब हम उसको 1 ले लेते हैं. फॉर लाइट शॉक लोड 1.5, मॉडरेट शॉक के लिए हम 2 ले लेते हैं. अगर हैवी शॉक आ गया, हैवी शॉक के लिए हम 3 ले लेते हैं, और एक्स्ट्रा हैवी शॉक आ गया तो 3.5 तक जाते हैं. ओके, सो यू कैन सी जो ये एस अगर 1 है तो जो ये वाला पार्ट है इसकी वैल्यू कुछ आएगी. बट अगर हम एक्स्ट्रा हैवी लोड शॉक लेते हैं फॉर द सेम लोड, अगर जो सेम लोड है, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन लोड इज एक्टिंग, बट दैट इज एक्टिंग इन अ शॉक वेव की तरह आ रहा है. सो उसका जो इफेक्ट हो 3.5 टाइम्स बढ़ जाता है. राइट. सो शॉक वेव या शॉक लोड हम कभी भी फेवरेबल मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है. सो इसलिए हम उसका इफेक्ट को ज़्यादा लेते हैं, बिकॉज चांसेस ऑफ फेलियर इन दैट कंडीशन इज मोर. Now, race rotation factor. What is race rotation factor? As I have already told you, in a bearing, there is two casing. Inner race, two race, outer and inner. So, if inner race rotate, मतलब outer race is fixed, means bearing is on shaft, because shaft is a rotating body. So, वहाँ पर हम 1 लेंगे. If outer race rotate, लाइक एक्सेल इज अ फिक्स बॉडी, तो 1.2 मीन्स अगर आउटर रेस रोटेट हो रहा है तो चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज सेम लोड के लिए जो इक्विवेलेंट लोड है वो ज़्यादा है आउटर रेस रोटेट में. इस टाइप से आपको चीज़ों को समझना है. नाउ हमने एक्स एंड वाई देखा था. राइट. एक्स एंड वाई इज रेडियल लोड फैक्टर एंड एक्शियल लोड फैक्टर. सो अगर मैं एग्जाम्पल को देता हूँ, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है. इन थ्रस्ट बॉल बेयरिंग रेडियल लोड इज 0. सो रेडियल लोड कभी लेता नहीं है, तो रेडियल लोड फैक्टर विल बी 0 एंड एक्शियल लोड फैक्टर विल बी 1. अगर यही सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग है तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 0. अगर DGBB है और टेपर रोलर बेरिंग है, सो यू रिमेंबर वहाँ पर FR/FA इज ग्रेटर देन 1, सो x इज ग्रेटर देन y. अगर एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग है तो याद होगा आपको FR/FA इज लेस देन 1, सो यहाँ पर x इज लेस देन y. सो दिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, ये आपके जो कंसेप्ट है उसको दर्शाता है कि यू हैव अ गुड बेसिक नॉलेज और नॉट. राइट. नाउ जो ये अब फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, इक्विवेलेंट लोड वाला फॉर्मूला. इक्विवेलेंट लोड का फॉर्मूला क्या बताया? पी और पी एम इक्वल्स टू एस इंटू एक्स इंटू वी इंटू एफ आर प्लस एफ ए इंटू वाई और वाई इंटू एफ ए. ये जो फॉर्मूला है ये एक इक्विवेलेंट लोड, ठीक है, जो स्पीड एंड फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट. यहां पर जो स्पीड है, लोड, जो फैक्टर्स है बाकी, सर्विस कंडीशन, जैसे सर्विस कंडीशन क्या है यहाँ पर, एस इज सर्विस कंडीशन, दीज आर योर लोड, एफ आर एंड एफ ए लोड, एक्स एंड वाई इज योर, मैं बोल सकता हूँ कि डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशंस, वी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कंडीशन. एन जो इक्विवेलेंट लोड है, अगर इतना इक्विवेलेंट लोड लग रहा है तो साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल कितने बाद फेल होगा वो डिफाइन हो जाता है, क्योंकि जो बेरिंग की लाइफ है वो रोटेशन आरपी नंबर ऑफ रोटेशन में फिक्स करते हैं. ओके, सो उस तरीके से तो ये जो फॉर्मूला है ये किसी एक कंडीशन के लिए है, लाइक देयर इज अ टाइम, देयर इज अ ग्राफ बिटवीन लोड एंड टाइम. सो दिस विल बी योर एफ आर इज कॉन्स्टेंट, योर एफ ए इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द पीरियड. राइट. तो यहाँ पर एस कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स वाई कॉन्स्टेंट हो गया एंड आरपीएम कांस्टेंट हो गया. बट ये तो आइडियल कंडीशन है. प्रैक्टिकल कंडीशन में इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक, ओके, ये आपकी बाइक है, समथिंग लाइक दिस. ओके, यहाँ पर सीट, ये बाइक या साइकिल है जो भी है, ये पीछे वाली पिलियन सीट. आप जब अकेले चला रहे हैं, व्हेन यू आर राइडिंग इट अलोन, सो द लोड में भी यू आर 70 kg, सो 70 kg का लोड है, and you are running at 80 km per hour, then traffic तो 40 km per hour, again highway 100 km per hour. After some time you met your friend और वो भी बैठ गया, so वो भी मान लो वो 80 kg का, थोड़ा तंदुरुस्त है, खाते पीते घर का. Now the load is 150 kg, speed get reduced 80 km per hour, then 30 km per hour, then 60, then 40, then 10, मतलब means you can understand it, right? So here load is also changing, कंडीशन इज ऑल्सो चेंजिंग, कहीं पर खड्डे आए, कहीं पर नहीं आ गए तो शॉक वेव्स आ गए. स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग, मीन्स नंबर ऑफ रोटेशन आरपीएम है वो भी चेंज हो रहा है. सो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? वहाँ पर हमारा ग्राफ बनेगा, फर्स्ट दिस इज रेडियल लोड,
this is axial load, then this is radial load, this is axial load, then this is radial load. ओके तो यहाँ से अगर ये इस टाइप का ग्राफ बन रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज FR1, दिस इज FR2 एंड दिस इज FR3. एंड नेक्स्ट दिस इज FA2 एक्शियल लोड, FA3. सो हम और क्या चेंज हो सकता है, सर्विस फैक्टर. सो S1 कुछ वैल्यू है, N1 समथिंग, X1 एंड Y1 समथिंग, S2 N2 X2 एंड Y2. ये मैं बता रहा हूँ वेरिएबिलिटी क्या क्या हो सकती है. यहाँ पर FA3 मान लो 0 हो गया, नो एक्शियल लोड, S3 की सम वैल्यू, N3 की सम वैल्यू, X3 एंड Y3. और टाइम भी चेंज हो रहा है, पहले ये 2 मिनट के लिए इस पर था, फिर 3 मिनट के लिए इस पर था, देन 4 मिनट के लिए इस पर था. ओके सो यहाँ पर 2 मिनट, यहाँ पे 3 मिनट एंड यहाँ पे 4 मिनट. सो यू कैन सी दैट देयर इज वेरिएबिलिटी इन एवरीथिंग. सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द इक्विवेलेंट लोड. सो इक्विवेलेंट लोड इज डिफाइंड फॉर अ this we can say equivalent load is defined for this condition or this condition or this condition, not for when we are not for the condition, if we are taking all not for the condition in which everything is variable. हर चीज़ फिक्स होगा तब मैं equivalent load निकाल सकता हूँ. बट उस केस में क्या करेंगे, खाली हाथ तो नहीं बैठ सकते ना. सो उसका भी मतलब लोगों ने ये निकाल लिया रास्ता. सो वी विल फाइंड इक्विवेलेंट लोड फॉर वन, दैट इज S1 X1 V1 FR1 plus Y1 F1. सिमिलरली P2 P3, राइट. हमने सब निकाल लिया. और इसका जो इक्विवेलेंट लोड है, इसका जो इक्विवेलेंट है, ओके, उसको हमने वहाँ से हमने क्यूबिकल मीन लोड करते हैं. दीज P1 इज फॉर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज फॉर 2 कंडीशन, बट दिस इज फॉर 3 कंडीशन. बट फॉर द एंटायर, जो ये एंटायर पिक्चर है, इसके लिए क्या, तो उसको हम निकालते हैं क्यूबिकल मीन लोड से. यहाँ पर क्यूबिकल मीन लोड में हम क्या करते हैं कि एंटायर, फॉर द एंटायर पीरियड इक्विवेलेंट लोड इज N1. हियर N1 इज योर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. ओके, N1 N2 जो भी, N3 N5 एंड 100 तक. PE1 PE2 अप टू PEN इक्विवेलेंट लोड फॉर N कंडीशन, राइट. यहाँ पर जो A है वो एक वेरिएबल है, मतलब वो उसकी फिक्स वैल्यू है, नॉट वेरिएबल. वेट, सॉरी. सो A की वैल्यू जो है फॉर बॉल बेरिंग, A की वैल्यू होती है 3 एंड फॉर रोलर बेरिंग दिस इज 10/3 A की वैल्यू. ओके, सो यहाँ पर 1/, है. सो इफ आई वॉन्ट टू राइट इट फॉर बॉल बेरिंग, देन PE विल बी N1 PE1 3 plus N2 PE2 raised to 3 dot 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 upon N1 plus N2 plus dot 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 equals to 1/3. Through this formula you can find the equivalent load for entire condition where N1 N2 N3 are number of revolutions. So number of revolution कैसे होंगे, मान लीजिए for the first condition RPM is 300 and it run for 2 minutes, right? So 600 revolution. Second RPM is 500 and minute is 3, so 1500 revolution. Third N3 RPM is 400 and minute is 4, so मान लीजिए 1600. So we have to calculate the revolution, not the revolution per minute. हमको revolution से मतलब है, okay? Because जो life of anti friction bearing है वो define होती है revolution पे, जो कि अब हम पढ़ेंगे, okay? So let's see life of anti friction bearing. AFB means anti friction bearing, okay? Defined as, life of anti friction bearing is defined as number of revolution, defined as number of revolution that a bearing has undergone before the evidence of first fatigue failure, before the evidence of first fatigue failure. इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि ये शाफ्ट है, मान लो आपका ये दिस इज शाफ्ट एंड यू आर अप्लाइंग अ लोड, ओके, कि हम सॉम में जैसे पढ़ते हैं स्टैटिक लोड, यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन, यहाँ पर फटिक कंडीशन है. फटिक कंडीशन मीन्स जो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 1 घूम के यहाँ आ गया, 2 घूम के यहाँ आ गया, मतलब समझ रहे ना, ये रोटेशन में होता है. सो 1 के ऊपर कभी इसके नीचे है तो ज़्यादा लोड लग रहा है, 1 यहाँ आ गया तो कम लोड है, 1 यहाँ आ गया तो अलग लोड है. सो इसलिए फटिक लोडिंग होती है, राइट, फटिक लोडिंग. सो
defined as number of revolution that a bearing has undergone before the evidence of first fatigue failure either in the races or in the rolling bearing. So या तो रेस फेल हो सकता है या तो बॉल्स फेल हो सकते हैं. जनरली जो होते हैं बॉल फेल हो जाते हैं. कैसे फेल होते हैं मैं आपको वही बता देता हूँ. इफ़ यू हैव सीन एन ओल्ड बेयरिंग, तो जो उसकी बॉल्स होती हैं उसके ऊपर आपको इस टाइप के नॉचेस दिखेंगे. नॉचेस इन द सेंस, नॉचेस भी नहीं बोल सकते, खड्डे टाइप के बहुत स्मॉल होते हैं जो कि वियर आउट हो जाते हैं. ओके, वियर आउट के काफ़ी चांसेस हैं. लाइक बहुत पुरानी बेयरिंग हो गई एंड यू लुब्रिकेंट, जो सॉलिड लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म हो गया. सो बिकॉज ऑफ दैट हीट टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके कारण थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाता है. ये सीवियर कंडीशंस में होता है जैसे कि गर्मियों में, और इसलिए इनकी नंबर ऑफ साइकिल डिफाइन हो जाती है. साथ में फटीग के अंदर क्या होता है कि आप बहुत लंबे टाइम तक बाइक यूज़ कर रहे हैं, 3-4 साल 5 साल, और आपको बेयरिंग चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि जो फटीग होता है उसके अंदर फ्रैक्चर बहुत आसानी से हो जाता है. वहाँ पर ईल्डिंग नहीं होती. ओके, जैसे फटीग में ईल्डिंग नहीं होती है. ईल्डिंग मतलब समझते हैं आप, शेप चेंज नहीं होता है. यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है और क्रैक आ जाता है. राइट, अगर जैसे एक वायर है, उसको हम कैसे करते हैं, पहले ऐसे मोड़ करते हैं, फिर ऐसे मोड़ते हैं, फिर ऐसे मोड़ते हैं, फिर ऐसे मोड़ते हैं, और वो वायर यहाँ से टूट जाता है. राइट, पर उस वायर को आप यहाँ से खींचे और यहाँ से खींचे तो आप नहीं तोड़ सकते हैं. बहुत जो छोटे छोटे वायर होते हैं. राइट, सो ये टाइप के फटीग फेलियर होते हैं. सो लाइफ इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज 2000 आवर्स, ऐसे दिया है 2000 आवर्स एट द रेट ऑफ 600 RPM. सो यहाँ पर कैसे करेंगे, 2000 आवर्स इंटू मिनट में चेंज करेंगे 60 इंटू 600. सो लाइफ विल बी 72 इंटू 10⁶ RPM. सो अगर मैं 2000 RPM चेंज कर दूँ, यहाँ पर ये जो RPM है इसको मैं कर दूँ 6000 RPM. वेरी हाई स्पीड बाइक कभी चलाई होगी आपने, मैंने 500 इतने तक RPM पे चलाई है. ओके, नाउ माई एम इज़ अराउंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 6500 के आसपास चलाना है, तो उसके लिए भी बाइक भी लेनी है. ओके, सो देखते हैं 6500 पे क्या मज़ा आता है. ठीक है, सो 6000 RPM मान लीजिए. देन हाउ मेनी आवर्स इक्वल्स टू, क्योंकि लाइफ तो दिस इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 10⁶, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 आवर्स ही चलेगा भाई. आप स्पीड बढ़ाओ या कम करो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन विल बी फिक्स्ड. ओके, सो अब यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ डिफाइंड होती है. ठीक है, इसकी सो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है नॉमिनल लाइफ और रेटेड लाइफ और L10 लाइफ, L90 लाइफ, लाइफ विथ 90% रिलायबिलिटी. इस टाइप के टर्म्स आपको सुनाई देंगे. और इफ़ यू गो एंड वांट टू परचेस अ बेयरिंग, सो वहाँ पर नॉमिनल लाइफ बोलेंगे, रेटेड लाइफ बोलेंगे, जो भी दुकानदार होगा. ओके, ही मे नॉट नो द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द बेयरिंग, लाइक हाउ बेयरिंग इज मेड अप ऑफ, बट उसको नॉमिनल लाइफ पता है. उसको पता है अगर इसने ये लाइफ नॉमिनल लाइफ बोली तो क्या इसका मतलब है. राइट, सो इट इज़ डिफाइंड. नाउ लाइफ ऑफ एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग मैंने आपको बता दिया. ओके, इट इज़ डिफाइंड फॉर अ ग्रुप ऑफ बेयरिंग. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिविजुअल बेयरिंग या इंडिविजुअल बॉल के लिए नहीं होता, ग्रुप ऑफ बेयरिंग्स के लिए होता है. ओके, defined as a number of revolution that 90% group of identical bearings can serve or exceed at a given load without any failure. तो जो जितने भी बॉल्स हैं उसमें अगर 90% ग्रुप, मतलब कुछ तो फेल होंगे ही. राइट, या तो 90% बेयरिंग ले लो या 90% बॉल्स ले लो, जो भी लेना है ले लो. सो 90% मान लीजिए 100, यू हैव 100 बॉल्स इन अ बेयरिंग और यू हैव 100 बेयरिंग. आफ्टर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 10 get failed and 90 is not safe. So ये जितने भी इसके बीच में आपने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किए हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, दैट इज योर नॉमिनल लाइफ और रेटेड लाइफ. तो इसका मतलब ये होता है. ओके, और इसी ये जो लाइफ आएगी नंबर ऑफ लाइफ, इसी को हम L90 लाइफ बोलते हैं. L90, L10 और नॉमिनल लाइफ और रेटेड लाइफ. और क्वेश्चन में आपको यही गिवन होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये गिवन होगा, और इसके बेसिस पे आपको चीज़ें फाइंड करनी होगी. जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपको कोई L90 लाइफ आपको पता है. ओके, L90 लाइफ, बट यू हैव टू फाइंड L90 लाइफ इज़ फॉर रिलायबिलिटी. L90 लाइफ के लिए कुछ रिलायबिलिटी है. वैसे ही आपने मान लो आपको 90% रिलायबिलिटी, राइट, आपको 80% रिलायबिलिटी के लिए सेम बेयरिंग कितनी लाइफ देगा. राइट, तो
जितनी ज़्यादा रिलायबिलिटी लाइफ उतनी कम, राइट। क्योंकि अगर आप दोस्त देखेंगे, आपके 100 दोस्त हैं, इसमें से कितने रिलायबल है कि आपको आपकी हेल्प करेंगे रात के 12 बजे आके? 2 हो जाते हैं, कम हो गए ना। कितने परसेंट ऐसे दोस्त हैं कि रिलायबल आप रिलाय कर सकते हो कि घूमने जाएंगे? 10। क्योंकि घूमने में, गोवा जाने में तो आधे लोग काट ही देते हैं। कितने परसेंट दोस्त ऐसे हैं जिनसे आप फ़ोन करेंगे तो फ़ोन उठा लेंगे? 70। आधे लोग तो भगा ही देंगे कि भाई बिजी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। सो दिस टाइप ऑफ, यहाँ पर देख रहे हैं रिलायबिलिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिक्रीज हो रहे हैं। सिमिलरली जैसे जैसे आप रिलायबिलिटी बढ़ाएंगे, वांट अ रिलायबिलिटी ऑफ 99%, देन योर L90 लाइफ विल योर L विल डिक्रीज, लाइफ विल डिक्रीज। बट जो हमने L90 के लिए, L90 इज डिफाइंड फॉर 90%, राइट। सो उसका जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से आता है, L/L90 दैट इज लाइफ जो हमें फाइंड करना है, एंड L90 इज फॉर रिलायबिलिटी 90% इक्वल्स टू Ln 1/R अपॉन Ln 1/R90, वेर R इज द रिलायबिलिटी अपॉन 1.117। ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। मैंने भी रटा था और इसका डेरिवेशन मुझे भी नहीं पता है, मैंने रटा था। सो ये चीज़ें देख लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और गेट में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप यहाँ पर जब L60 रखेंगे, मतलब 60% रिलायबिलिटी, L90 इक्वल्स टू Ln 1/0.6 हो जाएगा अपॉन Ln 1/0.9 हो जाएगा। सो यू विल गेट वैल्यू समथिंग। सो L60 विल बी 3.85 टाइम्स L90। अगर L90 लाइफ 100 है तो L60 कितनी हो जाएगी? 385। सिमिलरली वैल्यू यू विल कंपेयर L50 एंड L90, यू विल गेट हेयर 5। सो ये वाला जो टर्म है, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। समटाइम्स इन क्वेश्चन L50 इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड, और क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द L90, सो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और यू कैन फाइंड बाय दिस फॉर्मूला इफ यू डोंट रिमेंबर। अब जो एक कंसेप्ट है दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कितनी हो सकती है? 100% तो मैक्सिमम हो गई, राइट। और 100% या 99.99%, 100% रिलायबल तो कुछ होता ही नहीं है। सो मिनिमम इज L50, सॉरी 50% रिलायबिलिटी, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी इज 50%। सो L10 में बोल रहा हूँ, L10 मतलब होता है L90, ओके। L20 मतलब होता है L80, L40 मतलब होता है L60। नाउ यू अंडरस्टैंड, राइट। So minimum value of reliability is 50%. L10 minimum number of revolution bearing will complete or exceed, and maximum to maximum 10% of bearing will fail, right। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। Now डायनेमिक लोड कैपेसिटी, हम स्टैटिक लोड कैपेसिटी भी पढ़ेंगे बाद में, बट डायनेमिक लोड कैपेसिटी। अब डायनेमिक लोड, ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट। तो प्लीज़ इसको आप हवा में मत उड़ा दीजिए। मैं शॉर्टकट्स भी कुछ बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने को, बट प्लीज स्टिक टू द बेसिक। डायनेमिक लोड कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय सी, इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोड। अब यहाँ पर लोड कैपेसिटी है, मतलब ये लोड के बारे में बात कर रहा है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड दैट 90% ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल बेयरिंग कैन सर्व फॉर अ मिनिमम लाइफ ऑफ 1 बिलियन रिवोल्यूशन। मीन्स इफ देर आर 100 बेयरिंग and the life is 10 raised to 6 billion revolution, right। 1 billion means 10 raised to 6, sorry 1 million not billion यार, वही मैं सोचूं गलत कैसे होगा। 1 million, so 1 million is 10 raised to 6, sorry 1 million is 10 raised to 6, right। so 10 raised to 6 साइकिल के लिए कितने रेवोल्यूशन होंगे? 10 raised to 6 होगा ना 1 million, या 10 raised to 6। सो यहाँ पर मान लीजिए जो लोड है उसकी वैल्यू है 10 kg और 100 न्यूटन। सो दिस इज योर डायनेमिक लोड कैपेसिटी। एज यू इंक्रीज द लोड, इफ से यू हैव इंक्रीज इट 200 न्यूटन, देन योर लाइफ विल डिक्रीज। दिस लाइफ विल बिकम मे बी, यहाँ पर 1 मिलियन है, 1 मिलियन है तो 0.5 मिलियन हो गया, मान लीजिए। एग्जैक्टली हाफ नहीं होगा बट मान लीजिए 0.5 मिलियन। सो इस तरीके से चेंज हो जाएगी चीज़ें, ओके। सो इफ लोड इज इक्वल्स टू डायनेमिक लोड कैपेसिटी, देन L90 जो होगा वो 1 मिलियन रेवोल्यूशन होगा, राइट। अभी हमने देखा था इफ लोड इज लेस देन C, देन योर L90 विल बी
ग्रेटर देन 1 मिलियन रेवोल्यूशन। यहाँ पर जो डायनेमिक लोड कैपेसिटी की डेफिनेशन में 1 मिलियन रेवोल्यूशन आ रहा है, L90 इज नॉट सेम। L90 इज फॉर द 100% 90% रिलायबिलिटी, एंड रिलायबिलिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लोड। सो एज लोड डिक्रीजेज L90 लाइफ विल डिक्रीज, as load decreases L90 life will increase, as load increases L90 life will decrease। तो वही मैं शो कर रहा हूँ आपको, बिकॉज P इज द लोड, राइट। अगर ये ऐसे हो गया तो यहाँ पर L90 इज लेस देन 1 मिलियन रेवोल्यूशन। सो अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? सो इसका एक फॉर्मूला है, L90 इज इक्वल्स टू C अपॉन PE रेज टू K। सो ये काफ़ी फेमस फॉर्मूला है। सो वेयर C आपका क्या होगा? डायनेमिक लोड। PE इक्विवेलेंट लोड, जो आप फर्स्ट फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। K जो है कांस्टेंट है, दैट इज 3 फॉर बॉल बेयरिंग एंड 10/3 फॉर रोलर बेयरिंग, हमने लास्ट में पढ़ा था, ओके। और यहाँ पर जो C/PE है, इसको हम लोडिंग रेशियो कहते हैं। तो सम टाइम इन क्वेश्चन लोडिंग रेशियो भी पूछा जाता है। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया नोमेनक्लेचर, इक्विवेलेंट लोड क्या होता है, देन वी हैव फाइंड लाइफ ऑफ एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, देन डायनेमिक लोड। बट ये सब इतना पढ़ने का सब कुछ तो याद नहीं करेंगे। सो फॉर रिवीजन, if you just want to solve the numerical, so just remember L90 equals to C upon PE raised to K. K is equals to 3 ball bearing, K is equals to 10/3 roller bearing, okay. L by L90 is equals to 1 by R ln upon ln 1 by R90 raised to 1 by 1.17। ये फॉर्मूला हो गया, राइट। और इसके पहले एक फॉर्मूला PE is equals to S x V F R प्लस Y F A। बस इतना याद कर लो, आधा काम बन जाएगा, ओके। बिकॉज आप जब रिवीजन करते हैं तो हमेशा आप चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, राइट। मतलब सारी थ्योरी ये सब पढ़ेंगे तो भाई वो उससे अच्छा तो है कि आप फिर से वापस नया सब्जेक्ट ही पढ़ रहे एक तरीके से। सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। और DGBB means double group ball bearing has a dynamic load capacity C. So given is 4500 Newton. Operation on a following work cycle. So work cycle. Now here radial load FR1 is 1500 Newton, 15,000 Newton. Okay. N1 is 500 RPM. And time is 25% of time, total time. Radial load 2. देन 10 किलो न्यूटन, RPM चेंज हो गया 700 RPM, सॉरी यहाँ पर भी RPM, टाइम इज 50%। नाउ रेडियल लोड इज 7 किलो न्यूटन, N3 यहाँ पर फिर चेंज हो गया 400 RPM एंड रिमेनिंग टाइम सो 25% टाइम ये भी। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड हाफ लाइफ ऑफ बेयरिंग। सो हमको L50 फाइंड करना है, हाफ लाइफ, रिमेंबर हाफ लाइफ फाइंड करना है L50। सो कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू सी, ये जो चीज़ें हमें दे दी गई हैं, इन चीज़ों से हमें सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा? कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट लोड फाइंड करेंगे। सो इक्विवेलेंट लोड विल बी PE इज इक्वल्स टू, लेट टाइम हमने मान लिया कि कुछ है, राइट। हमने टाइम को मान लीजिए 1 मिनट माना है, 1 मिनट, ओके, 1 मिनट। सो ये 25% ऑफ 1 मिनट, 50% ऑफ 1 मिनट, 25% ऑफ 1 मिनट। सो P क्या हो जाएगा हमारा? N1 PE1 रेज टू 3, क्योंकि यहाँ पर है DGBB, सो 3 आएगा। N2 PE2 रेज टू 3 प्लस N3 PE3 रेज टू 3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 रेज टू 1/3। सॉरी राइटिंग खराब है अभी, तो मैं थोड़ा अच्छा लिखूँ। सो PE इज इक्वल्स टू N1 की वैल्यू 500 इंटू 0.25 बिकॉज फॉर 25% टाइम ओनली, राइट। PE की वैल्यू 15,000 रेज टू 3। सिमिलरली आप पुट करेंगे 0.5 इंटू 700 और यहाँ पर जो वैल्यू है रेज टू 3 प्लस 0.25 इंटू 400 इंटू रेज टू 3 अपॉन 500 इंटू 0.25 प्लस 0.5 इंटू 700 प्लस 0.25 इंटू 400 और टोटल को रेज टू 1/3 कर देंगे। सो यहाँ को आपको वैल्यू मिलेगी 1192 न्यूटन। सो दिस इज योर इक्विवेलेंट लोड, राइट। अब इक्विवेलेंट लोड तो मिल गया। नाउ इफ़ यू रिमेंबर अ फॉर्मूला, मैंने आपको L90 लाइफ फाइंड करने का फॉर्मूला मंत्र दिया था, C अपॉन PE रेज टू
1/3 आ जाएगा यहाँ, सॉरी C/K होता है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। L90 तो मुझे ये पता है, सी की वैल्यू थी कितनी थी भाई, 40500, और ये है 1192, सो CE जो होगा वो ऑफकोर्स 1 मिलियन से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो L90 आएगा वो आएगा 47.385 मिलियन रेवोल्यूशन। ओके, सो L90 की वैल्यू आपको ये मिल गई, मिलियन रेवोल्यूशन है ये, मिलियन इंटू 10⁵. एंड वी नो L50 क्या है हमारा, 5 इंटू L90 है, मैंने आपको बताया था, और ये फार्मूला याद नहीं है तो हम वही फार्मूला जो है उससे कर लेंगे। सो ये आ जाएगा 236.925 रेवोल्यूशन, हाँ मिलियन रेवोल्यूशन, राइट। तो अगर हम टाइम पूछे कि कितने आवर्स में, ये तो अभी L50 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर दिया, बट हाफ नंबर ऑफ आवर्स में पूछा है, दिस इज इन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, राइट। अगर नंबर ऑफ आवर में पूछा तो कैसे करेंगे, फर्स्ट हमें मीन, हमने जो यहाँ पर क्या लिया, 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन हो गए, तो इन 1 मिनट रेवोल्यूशन इज 0.25 इंटू 500 प्लस 0.5 इंटू 700 प्लस 0.25 इंटू 400। सो हमने जो मीन लिया 575 RPM लेके काम किया ना भाई हमने। सो L50 इन आवर्स अगर पूछा है तो दिस इज 236.925 इंटू 10⁶ अपॉन 573 इंटू 60, ये तो मिनट हो गया मिनट में, ये आवर्स में। सो इट आंसर विल बी 6891.36 आवर्स। सो प्लीज़ जो क्वेश्चन में होता है पूछा किस में गया वो देखिए, अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में पूछा जाए सो आंसर विल बी दिस, नंबर ऑफ आवर्स में पूछा गया तो आंसर दिस, मिनट्स में पूछा गया तो इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दीजिए। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आते रहेंगे, ओके। और इनका कोई जुगाड़ नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, आपको सॉल्व करना ही है, ओके। नाउ मैंने डायनेमिक लोड पढ़ लिया, नाउ स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड इज डिफाइंड फॉर अ थ्योरेटिकल डिज़ाइन, ओके, थ्योरेटिकल डिज़ाइन के लिए होता है, और स्टैटिक डिज़ाइन वी कैन से, ओके। सो जो डायनेमिक लोड कैपेसिटी है, जो डायनेमिक लोड कैपेसिटी हमने पढ़ा था, दैट इज फॉर फटिग डिज़ाइन, और वी कैन से एक्चुअल डिज़ाइन, बिकॉज एक्चुअल में तो वही हो रहा है ना। सो हेयर वी एज्यूम दैट हमने जो हमारी बेयरिंग्स होती हैं इस टाइप की, तो इसके बीच में जो बेयरिंग्स हैं हमारी 1 2 3 4 5 6, हम मान लेते हैं यहाँ पर जो लोड है जस्ट वेट, जो ये लोड है PE, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं दैट इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अमंग द बॉल्स, जितने भी नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाएगी, असली में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ही नहीं सकता, यू कैन सी दैट, राइट। हम इसके जो डायग्राम है उसी से देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड जो यहाँ पर सिग्मा इंड्यूस्ड है बेयरिंग का, वो क्या होगा, PE अपॉन N। ये तो हो गया कि जैसे N मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 बेयरिंग है, सो 7 वैल्यू आ जाएगी। एंड एरिया, वेर दिस एरिया इज, इफ यू रिमेंबर, प्रोजेक्टेड एरिया, और यहाँ पर प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, π/4d², वेर d इज द रेडियस ऑफ द और डायमीटर ऑफ द बॉल। सो अगर सिग्मा इंड्यूस्ड पूछा जाए कि नंबर ऑफ बॉल्स सॉरी, तो सिग्मा इंड्यूस्ड सिग्मा परमिसिबल से कम होना चाहिए। सो PE अपॉन NA शुड बी लेस देन सिग्मा परमिसिबल, एंड थ्रू दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड एनीथिंग, लाइक अगर आपको P मैक्स पूछ दिया जाए तो क्या होगा, PE मैक्स विल बी इक्वल्स टू N इंटू A इंटू सिग्मा परमिसिबल, और यहाँ पर कुछ भी पूछ लिया जाता है, ओके। तो जैसे P मैक्स दे रखा है, N पूछ लिया जाए नंबर ऑफ बॉल कितने यूज़ होंगे। सो यहाँ से एक चीज़ आ गई कि PE मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो एज एरिया ऑफ द बॉल इंक्रीजेस, PE मैक्स इंक्रीजेस, राइट, एज नंबर ऑफ बॉल इंक्रीजेस, PE मैक्स इंक्रीजेस। बट इन डायनेमिक लोड क्या होता है, डायनेमिक लोड में हम फटीग नेचर देखते हैं, राइट, फटीग, ओके, डायनेमिक लोड में। सो वहाँ पर जो C होता है, जो डायनेमिक लोड कैपेसिटी, वो इंडिपेंडेंट हम मानते हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम नंबर ऑफ रोलिंग एलिमेंट, बिकॉज हमने अभी तक जितना भी डायनेमिक लोड के बारे में पढ़ा, कहीं पर भी C फाइंड करते टाइम ये नहीं आया। और जो मैक्सिमम लोड होता है, जो हम ये बनाते हैं, मैक्सिमम लोड जो ये वाला बेयरिंग होता है,
यहाँ पर लोड लगता है, इसके ऊपर मैक्सिमम लोड होता है और लोड वेरी करता जाता है। पहले ये था, ये बाद में यहाँ पर आ गया घूम के, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। सो लोड इज वेरिंग। सो यहाँ पर फटीग लोडिंग हो गई, एंड इन फटीग लोडिंग एज साइज इंक्रीजेज चांसेस ऑफ क्रैक इंक्रीजेज। सो उससे पता चलता है देयरफॉर योर डायनेमिक लोड कैपेसिटी विल डिक्रीज। सो फटीग लोडिंग में हम ये सोचते हैं कि हमारी चीज़ें कम, मतलब जो साइज़ है वो कम रहे, राइट। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये आपको काफ़ी जगहों पे फटीग लोडिंग के बारे में पता चलेगा। ओके, आप सॉम में पढ़ेंगे तो मेनली सॉम में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, तो वहाँ पर आपको पक्का आप एक और अच्छे से सॉम पढ़ लीजिएगा। ओके, नाउ तो हमने एक चीज़ देख लिया कि एज साइज इंक्रीजेज स्टैटिक लोड कैपेसिटी इंक्रीजेज एंड डायनेमिक लोड कैपेसिटी डिक्रीजेज। ठीक है, ये वहाँ का फंडा था, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ एक कंसेप्ट है स्लीपर, मतलब एक टाइप ऑफ बेरिंग है स्लीपर और गाइड बेरिंग। सिलेबस में नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हेन स्लाइडिंग ऑकर इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन बेरिंग इज रेफर्ड एज गाइड बेरिंग। ओके, सो व्हेन स्लाइडिंग occurs in straight line direction then the bearing is referred as guide bearing. So यहाँ पर अगर हम देखें, एक ब्लॉक है ऊपर, ये स्ट्रेट घूम रहा है, तो जो नीचे वाला होगा इसको हम स्लीपर या गाइड बेयरिंग कहेंगे। ओके, तो ये काफ़ी डिफरेंट जगह पर हो जाता है। इट इज़, तो आप यहाँ से हम देख सकते हैं कि शाफ्ट में तो यूज़ होगा नहीं, बिकॉज शाफ्ट में जो रोटेशन होता है वो एक ही पोजीशन पे रहता है, वो आगे मतलब एक्सियल मूवमेंट तो होता ही नहीं। ओके, नाउ एक स्लीव बियरिंग भी होता है, मतलब ये जो नाम है मैं आपको बताता हूँ, स्लीव बियरिंग। स्लीव बियरिंग इज व्हेन स्लाइडिंग ऑकर इन सर्कुलर डायरेक्शन, मतलब ये शाफ्ट का तरफ इशारा कर रहा है, देयरफॉर यूज्ड फॉर शाफ्ट। प्लेन बेयरिंग, ये टर्म्स हैं कुछ, जस्ट रिमेंबर। प्लेन बेयरिंग मीन्स जर्नल बेयरिंग यूज्ड एट रफ कंडीशन, मतलब शॉक वेव है विथ हैवी लोड। सो जर्नल बेयरिंग को ही हम प्लेन बेयरिंग कहते हैं, पर कब कहेंगे? व्हेन काफ़ी हैवी लोड है एंड शॉक वेव आ रही है। स्टड बेयरिंग, स्टड बेयरिंग इज यूज्ड इन कैम एंड फॉलोअर। ये हमें पढ़ना ही नहीं, जस्ट नाम है, कभी कभार पूछा जा चुका है, तो मैं इनके नोट्स बना के रख लेता था, तो इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पर जो है हमारा बेयरिंग टॉपिक, जो कि मैं बोल सकता हूँ 30 to 40% ऑफ द मशीन डिज़ाइन सिलेबस है, वो खत्म हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम क्लचेस स्टार्ट करेंगे। सो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, टेक केयर एंड बाय।